یا پھر پہلے اس مجسمے اور ان دو نامعلوم افراد کا کھوج لگاتا؟ بمبورگا کا مجسمہ مجھے بار بار کھٹک رہا تھا۔ اگر وہ میرے قبضے میں آ جاتا تو شاید رانگا لنگڑا سمیت میڈم لچی اور ان کا پورا گروہ وہ میرے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا، اور اس طرح فوزیہ کو ان کے قبضے سے چھڑانا بھی نسبتاً آسان ہو جاتا۔ میں فوری فیصلہ کرنے کا قائل تھا، اس لیے سب سے پہلے میں نے انہی دو نامعلوم نقاب پوشوں کا کھوج لگانے کا ارادہ کر لیا، لیکن صرف اسی حد تک کہ اگر جلد کھوج ملا تو ٹھیک، ورنہ پیلی گھاٹ جانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں نے زمین کا جائزہ لینا شروع کیا۔ میری غیر معمولی عقابی نظروں نے کار کے ٹائروں کے نشانات فوراً تاڑ دیے۔ میرا خیال تھا انہوں نے ضرور واپسی کا رخ کیا ہوگا، لیکن میرا خیال غلط ثابت ہوا۔ ساتھ ہی حیرت بھی ہوئی کہ ان کا رخ بجائے واپسی کے آگے جنگل کی اندرونی شمال مشرقی سمت تھا، جبکہ مجھے مغربی سمت جانا تھا، جدھر بقول بگا کے ان مچھیروں کی بستی تھی جن کی مدد سے میں سرحد پار پیلی گھاٹ تک جا سکتا تھا۔ بہرکیف میں نے کار کے ٹائروں کی رہنمائی میں اس سمت کی طرف لمبے لمبے ڈگ بھرنا شروع کر دیے۔ دن خوب نکل آیا تھا۔ خوشگوار دھوپ کی روشنی چھتنار درختوں سے چن کر نیچے پڑ رہی تھی۔ جنگل بھانت بھانت کے چرند پرند کی خوشحالی سے گونج رہا تھا۔ ایک مقام پر میں نے دوڑنا شروع کر دیا۔ آگے گھاس اور ٹیلے ٹبوں کا میدان سا گیا، ان کے درمیان سے گزرتا ہوا ایک بل کھاتی نہر کے کنارے آ گیا۔ یہاں ذرا رک کر میں نے جھک کر ٹائروں کے نشانات جانچے۔ وہ نہر والی سمت پر کنارے کنارے آگے تک چلے گئے تھے۔ اس طرف مجھے جنگلی گھاس اور درختوں کا سلسلہ دکھائی دیا۔ ایک اور بات کا انکشاف ہوا کہ کار یہاں ذرا دیر کو رکی تھی۔ شاید یہ لوگ یہاں کچھ دیر ٹھہرنا چاہتے ہوں گے، لیکن کچھ سوچ کر آگے نکل گئے تھے۔ میں اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو کر آگے بڑھنے لگا تھا، کیونکہ لگتا ایسا ہی تھا کہ وہ لوگ اب آس پاس ہی ذرا دیر کو عارضی ڈیرا ڈالے ہوئے ہوں گے۔ میرا خیال درست ثابت ہوا۔ نہر کنارے چند قدم آگے چلنے کے بعد جدھر نہر کا چوڑا پارٹ دائیں جانب بل کھا رہا تھا، اس طرف مجھے راجہ تیمور کی سفید ٹیوٹا درخت تلے ترچھی کھڑی نظر آ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ میں جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا محتاط روی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ یکلخت جنگل کا ماحول مجھے ٹھٹکا دینے والا محسوس ہونے لگا، یوں جیسے کچھ ہونے والا ہو، مگر کیا؟ ابھی شاید یہ پردہ اسرار میں تھا کہ میری چھٹی حص کچھ ایسا اشارہ کر رہی تھی، یا میرے ساتھ کچھ ہونے والا تھا، یا پھر پہلے ہی کچھ کسی اور کے ساتھ ہو چکا تھا۔ میرے تجسس نے مجھے آگے کی جانب کھدیڑا اور میں اب دبے پاؤں جھکا جھکا جھاڑیوں کا حصہ بنا کار کی طرف بڑھنے لگا۔ یہ سارا حصہ مجھے نہر والی گھاٹ ہی کا معلوم ہو رہا تھا۔ میں کار کے قریب پہنچا، نہر کے کنارے کی جانب ذرا گردن اونچی کر کے دیکھا تو دھک سے رہ گیا۔ وہاں واقعی کسی کے ساتھ کچھ ہو چکا تھا۔ خون کی چھپڑی میں پڑی وہ دو لاشیں ہی تھیں، لیکن نہیں، ان میں سے ایک زخمی وجود مجھے متحرک محسوس ہوا۔ میں نے گھاس سے نکلنے میں جلد بازی نہیں کی اور آگے بڑھنے سے پہلے اس کی گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ یہ تسلی کرنے کے بعد اور کوئی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں تیزی سے آگے بڑھا اور نہر کے گھاس والے کنارے پر پہنچ کر ایک بار پھر اطراف کا جائزہ لیا کہ کہیں میری ہی گھات میں کوئی چھپا بیٹھا نہ ہو، مگر سناٹے اور ٹھٹکا دینے والے گھمبیر سکوت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ ایک مر چکا تھا، وہ غیر ملکی مرد تھا۔ اس نے خاکی رنگ کی پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، داڑھی اور سر کے بال ڈارک براؤن تھے، عمر درمیانی تھی۔ دوسرا اس کا ساتھی جو کرا رہا تھا وہ ایک جوان اور صحت مند عورت تھی، خاصی خوبصورت، مگر اس وقت وہ جان کنی کے عالم میں تھی اور شاید اسے مار ڈالنے والے لوگ مردہ سمجھ کر آگے نکل گئے تھے اور بعد میں اسے ہوش آ گیا تھا۔ میری جانب دیکھتے ہی اس کے خون آلود ہونٹ تھرکنے لگے، مگر وہ کچھ کہے بغیر ہی ایک جانب اپنی مخروطی گردن ٹھلکا کر موت کی انجانی تاریک وادیوں کی طرف کوچ کر گئی۔ میں بے اختیار ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ نہ جانے یہاں کیسا خونی ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا جو میرے پہنچنے سے پہلے ہی اختتام پذیر ہو جاتا تھا۔ بہرکیف میں نے ان کی پہلے جامہ تلاشی لی۔ ان کا کچھ سامان بھی قریب بکھرا پڑا تھا۔ اس کی حالت بھی ایسی ہی نظر آئی جیسے کسی نے ان میں سے اپنے مطلب کی اشیاء نکال لی ہوں۔ ان کی جامہ تلاشی کے دوران ان کے شناختی کاغذات دیکھ کر میں الجھن میں مبتلا ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک اور بھی شے میرے ہاتھ لگی جو غالباً ان کی اصل شناخت کے لیے کافی تھی، کم از کم میری حد تک۔ ہاں، ان کی جیب سے نقاب برآمد ہوئے تھے اور میں یہ اندازہ لگائے بنا نہیں رہ سکا کہ یہی وہ دو نقاب پوش تھے جنہوں نے راجہ تیمور کے مختصر سے قافلے پر حلہ بولنے کے بعد انہیں قتل کیا اور مجسمہ لے اڑے تھے، لیکن پھر یہ خود بھی اپنے جیسے ہی خونی قاتلوں کے خطے چڑھ گئے۔ اب وہ کون تھے جنہوں نے ان پر حملہ کیا تھا؟ مرد گورا تھا اور لڑکی جرمن، اس کی رنگت تانبے جیسی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی ان کا آپس میں کیسے تعلق قائم ہوا، یا یہ بھی کسی تنظیم یا گروہ سے تعلق رکھتے تھے جن کا مقصد بمبورگا کے مجسمے کا حصول ہو سکتا تھا۔ دفتن ایک آواز پر میں چونک پڑا۔ جنگلی جھاڑیوں اور درختوں سے گھری بل کھاتی نہر کی سطح سے
दो दरियाई मुर्ग अजीब सी आवाजें निकालते हुए उड़ते हुए आए और मुझसे जरा परे घास वाली ढलान का रुख किया और वहां जा बैठे। इनकी गर्दनें गिद्ध की तरह बालों से आ रही थी। खोपड़ियां गंजी नहीं थीं, अलबत्ता गर्दन से सुर्ख सुर्ख कलगियों की थैलियां झूल रही थीं। मुझे ये कोई दरियाई या पानी के गिद्ध ही महसूस हुए। वो शायद भूखे थे और मेरी मौजूदगी की परवाह किए बगैर जल्दी जल्दी चूंचे मारने लगे। मैं जैसे गिरदोपेश से बेनियाज यकटुक उन्हें तकता रह गया। चौंका उस वक्त जब मुझे इनकी चोंचों में सुर्ख सुर्ख आलाइशें दबी महसूस हुई जिन्हें वो जल्दी जल्दी निगले जा रहे थे। मैं बिदका और उठकर उनकी जाने बढ़ा। वो मुझे देखकर फुदक कर दूर चले गए। वहां मेरे लिए एक और लर्जा खेज मंजर मुंतजिर था। वहां 3 लाशें और भी आड़ी तिरछी पड़ी थी। न जाने यहाँ कैसा खून रेज ड्रामा रचाया गया था। अभी मेरी अकल कुछ और समझने से कासिर थी, क्योंकि खुद मुझे भी अपने लिए यहाँ हर लम्हा खतरा महसूस होने लगा था। मैंने गौर से इन 3 लाशों का जायजा लिया। एक मुझे राजा तैमूर के ड्राइवर फतेह खान की लाश का गुमान हुआ, इसलिए कि मैंने गेट 3 से इसकी झलक देख ली थी, जबकि बाकी 2 लाशें ऐसे अफराद की महसूस हुई जो मुझे कबायली किस्म के लगे। इनके जिस्मों पर लिबास भी इसी किस्म के थे, करीबन नंग धड़ंग और खालों में मलफूफ। मैंने पुरसोच अंदाज में अपने होंठ भींच लिए। क्या साथ की हद तक मामला इसी कदर ही समझ आ सका था कि इस मनहूस मुजस्मे बम्बोरगा के हसूल के लिए ही ये सारा खूनी ड्रामा खेला जा रहा था, जिसकी वजह से पहले राजा तैमूर के काफिले पर हमला हुआ, फिर हमला करने वालों पर गालिबन किसी कबायली गिरोह ने हल्ला बोल दिया। अब मुजस्मा इनके हवाले हो चुका था और इन्होंने किधर का रुख किया था ये मुझे मालूम नहीं था। इन हालात में सब कुछ मुमकिन हो सकता था। मैं बहरहाल जल्द से जल्द इस वहशतनाक जगह से निकल जाने का इरादा रखता था कि कहीं किसी मकामी फर्द की निगाह में ना आ जाऊं और वो शोर मचा दे। ऐसा मैंने फौरन अपनी मंजिल का रुख किया। नहर किनारे मुझे मछेरों की कई छोटी बड़ी कश्तियां नजर आईं। मछेरों को चूंकि मछली और झींगे पकड़ने के लिए अक्सर औकात दूर तक सफर करना पड़ता था, इसलिए उन्होंने अपनी लंबी लंबी कश्तियों पर रहायशी कोठड़ियां और झोपड़ियां भी बना रखी थी। बाइफाज़े दीगर ये इनकी एक तरह से बोट हाउस कहलाती थी। बकौल बग्गा के इनमें से अक्सर मछेरों का घर भी यही हुआ करता था। ब्यासी या तवी की इस मुआवन नहर की सतह पर अनवाउ अकसाम के आबी परिंदे महवे परवाज थे। जिसे मछली की एक झलक नजर आती वो बड़े माहिराना अंदाज में गोता मारता और अपना शिकार ले उड़ता। करीबी जंगल था, दाएं जानिब आबादी जहां से धुआं सा उठता नजर आया। मुझे अंदाजा यही हुआ कि मछेरों की नदी किनारे आबाद बस्ती इनसे अलग थलग थी। कस्बे मिरानपुर के लोग यहाँ आकर इनसे मछली खरीद कर ले जाते। मछेरों ने जगह जगह ठिये भी लगा रखे थे। इनकी झोपड़ियां भी बनी हुई थी। मैं इनसे जरा फासले पर जिधर लंगर अंदाज कश्तियों की बहुतात थी वहां खामोशी से घात लगाए बैठा था कि कब और कौन सी कश्ती रवाना होती है और मैं उसमें चोरी छुपे सवार होने की कोशिश करता। मेरा यह इंतजार तवील तो जरूर साबित हुआ, मगर बेसमर नहीं रहा, क्योंकि घंटे भर बाद मुझे 2 कश्तियों की रवानगी का अंदाजा हो गया था। इनमें जाल कांटे और बड़े बड़े बक्से लादे जा रहे थे। कश्तियां दखानी थीं। हल्की गड़गड़ाहट की आवाज इनमें पैदा हुई और चिमनियों ने धुआं उगलना शुरू कर दिया। मैं इधर उधर देखता हुआ नहायत मोहतात रवि के साथ अपनी खुफिया कमीनगाह से निकला और पानी में उतर गया। सबसे पहले लंगर अंदाज कश्ती का एक मोहतात अंदाजा करते हुए सांस रोकर गहराई में तैरता बिल आखिर कश्ती के सबसे अगले हिस्से के पास उबरा। सतह आब से उबर कर मैं मोटे रस्सों और आईनी कुंडों के सहारे उठकर अंदर दाखिल हो गया। कोने में एक सलन ज़दा सी कोठड़ी बनी हुई थी जो गालिबन स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होती थी। मैं इसके अंदर किसी तरह जा घुसा। ये एक चौबी कोठड़ी थी जो जाल कांटे और मछलियों की फीड से भरी हुई थी। बसान बड़ी नागवार थी। मजबूरी थी, ये सब सहना पड़ा। मैं दरवाजे से हटकर कोने में जा दुबका। 4x6 का चौकटा था जहां से मैं बाहर और एक हद तक कश्ती के दुम्बाले और दरमियानी हिस्से को देख सकता था। दूसरी कश्ती का इंजन हल्की गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गया। इसका इंजन बदस्तूर बेदार रहा। फिर थोड़ी देर बाद ही कश्ती ने हरकत की और आहिस्ता आहिस्ता चौड़े पाट वाली नहर के दरमियान आकर उसने आगे का सफर शुरू कर दिया। मैंने बेख्तियार इत्मीनान की सांस ली और मोहतात होकर बैठ गया। नहर कहीं सीधी और कहीं बलखाती हो जाती। कश्ती दरमियानी रफ्तार से महवे सफर थी। साहिल किनारे बस्ती अब नजरों से ओझल हो चुकी थी। मैंने चौकठे से झांका। खुले नीले आसमान पर बादल के सफेद टुकड़े राजहंसों की तरह उड़ते तैरते नजर आ रहे थे। नहर के एक तरफ किनारे पर लांबी लांबी घास, इसके पार बांस और सरू का जंगल था, जबकि दूसरी जानिब नहर का एक कराड़ा कदरे ऊंचा था। वहां सफेद रेत पर मोटे मोटे गहरे सब्ज रंग के पौधे, कांटेदार झाड़ियां और इसके पार बर्फपोश पहाड़ियों की चोटियों के नजारे थे। मुझे ये सब हम रकाब महसूस हुए, यूं जैसे कश्ती के साथ साथ चल रहे हूं। कश्ती में मुझे 6-7 अफराद की मौजूदगी ही का अंदाजा हो सका।
जिनमें एक बूढ़ा, 2 नौजवान, एक अधेड़ उम्र औरत, बाकी मर्द थे। कश्ती के दरमियान में झोंपड़ी सी बनी हुई थी। एक मकाम पर कश्ती नहर किनारे होकर रुक गई। वो वहां तकरीबन 1.5 घंटा रुकी रही। मालूम हुआ इन्होंने जाल डाल रखा था। फिर वो रवाना हुए। नहर बल खाने लगी और मुझे लगा जैसे बर्फीली पहाड़ियां सिरकती सिरकती करीब आती जा रही हूं। जंगल सुकड़ने लगा हो। कराड़े पर रतीला मैदान वसत इख्तियार करने लगा। जल्दी नहर का एक जगह पार्ट गैर मामूली तौर पर कुशादा हो गया और इस पर एक चौबी पुल दिखाई दिया। मैं पहले से ज्यादा मोहतात होकर बैठ गया। चौखटे से झांका तो पुल पर दाएं बाएं 2 चौकियां बनी नजर आईं। वहां इंडियन सिक्योरिटी के चंद मुसल्ला अफराद चौकस गश्त करते दिखाई दिए। पुल की दूसरी जानिब भी इसी तरह की एक दखानी लांच मौजूद नजर आई। जरा देर बाद लांच के बूढ़े ने इससे कुछ कहा। दूसरी तरफ की लांच के आदमी भी हाथ हिलाकर चिल्लाए। एक बड़ी सी चरखी को घुमाया गया तो दरमियान से पुल 2 हिस्सों में तकसीम होकर फकत इसी कदर ही ऊपर को उठ गया कि एक कश्ती इधर और दूसरी उस पार जा सके। मगर दोनों तरफ की कश्तियां एक साथ ही पुल पर मौजूद एक बावर्दी शख्स के इशारे पर हरकत पजीर हुई और एक दूसरे के साथ साथ पहुंच कर रुक गईं। ये सब ऐसा ही था जैसे यहाँ का रोज का मामूल हो। मैंने तेजी से हरकत की। कश्ती के सैलन ज़दा फर्श पर किसी मछली की तरह फिसलता हुआ दूसरी कश्ती में जा पड़ा। पुल पर खड़े आदमी और दोनों इतराफ की चौकियों पर मौजूद अशखास की मुझ पर निगाह नहीं पड़ सकी। इसमें मेरी चापक दस्ती और होशियारी ही का दखल था। किस्सा मुख्तसर कि मैं दूसरी तरफ की कश्ती में सवार हो गया। इस कश्ती में 3-4 ही मर्द नजर आए। एक नौजवान औरत भी थी जिसने मैली सी साड़ी बांध रखी थी। ये सब सांवली रंगत के थे। थोड़ी देर तक दोनों कश्तियों के सौदागरान के दरमियान मछलियों और झींगों का लेन देन हुआ। इस दौरान मुल्की और गैर मुल्की आबी सरहदों के चंद मुसल्ला गार्ड्स भी कश्तियों में उतरकर गश्त करते रहे। मालकान ने इन्हें भी अपने अपने इलाके की सौगात अता की। ये सौगात तैयार और पकी हुई थी। एक गार्ड को मैंने कैकड़े के सूप की भी फरमाइश करते सुना। एक इंडियन कश्ती गार्ड कम वक्त इधर भी चलाया जिधर मैं दुबका बैठा था। मैं खतरा देखकर पीछे को सिरक गया। वहां जाल का ढेर रखा था। मैंने खुद को इसके अंदर किसी न किसी तरह समो दिया। खतरा टलते ही मैंने जब निकलने की कोशिश की तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं जाल में उलझ कर रह गया था। इस जाल के अंदर केकड़े थे। खुदा जाने मुर्दा थे या जिंदा, ताहम इनकी उबरवां सी आंखें मुझे खुली हुई और घूरती हुई महसूस हो रही थी। मैं जिस कदर जाल से निकलने की कोशिश करता इतना ही उलझता चला जाता। फिलहाल खतरा सर पर देखते हुए मैंने अपनी सी ये कोशिश तर्क कर दी। जब कश्ती रवाना हुई और पुल बराबर कर दिया गया तो मैंने फिर निकलने की सही की। अचानक मैंने हल्क से सिसकारी खारिज होगी। एकाएकी मुझे यूं लगा जैसे मेरी दाहिनी टांग पर कोई बेवस्त होने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तड़प कर देखा तो मेरे औसान खता हो गए। वो गैर मामूली साइज का केकड़ा था। इस कमबख्त ने अपने दोनों खमदार नाखून मेरी टांग में पवस्त कर डाले थे। मेरे पूरे वजूद ने झुरझुरी सी ली और अपने पैर को जोर जोर से झटकने लगा। एहतियात भी कर रहा था कि किसी किस्म की खड़बड़ की आवाज पैदा ना हो, क्योंकि गश्ती गार्ड अब भी इधर ही मंडला रहा था। जब जरा देर बाद वो अपना इत्मीनान करके वापस चला गया तो मैंने अपनी तगदो तेज कर दी। बड़ी मुश्किलों से मैंने इस केकड़े से पांव छुड़वाया और सिरकर मजीद कोने में चला गया जिधर निस्बतन कम ही अला बला रखा था। शुक्र था कि जरा देर बाद ही हमारी कश्ती की गुरु खुलासी हो गई। मैंने जरा झांका और यह देखकर खुशी से निहाल हो गया कि मैं सरहद पार पहुंच चुका था। कश्ती हनूज नहर में बहे जा रही थी। इसका इंजन एक यकसा और मखसूस आवाज के साथ छुक छुक कर रहा था। अब मैं इस कश्ती से भी उतरना चाहता था। इसके लिए मैं छुपता छुपाता हुआ उसी जगह जा पहुंचा जहां से मैं इस पर चोरी छुपे सवार हुआ था। किसी आबादी तक पहुंचने से पहले मैं कश्ती छोड़ देने का इरादा रखता था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे इस कश्ती में देख ले, लिहाजा एक मौका ताक कर मैं मुनासिब रफ्तार से बहती कश्ती से उतरकर पानी में चला गया और वहां से अंदर ही अंदर तैरता हुआ किनारे पर पहुंचा और घास पर जा लेटा। जरा देर तक लेटा लंबे लंबे सांस लेता रहा। इसके बाद उठकर इतराफ का जायजा लिया। नहर किनारे जरा फासले पर मुझे सरसब्ज सी ढलान पर किसी आबादी के आसार नजर आए। मैं उधर का रुख करने की बजाय कुछ सोचकर नहर के किनारे किनारे ही जंगल, झाड़ियों और दरख्तों की आड़ लिए पैदल आगे बढ़ने लगा। मैं दौड़ भी सकता था लेकिन अभी मुझे ठीक ठीक रास्ते का तायुन नहीं था। पीली घाट के बारे में यहाँ किसी मकामी शख्स से इस्तफसार करना जरूरी था। कई कदम चलते रहने के बाद मैं एक मकाम पर अचानक ठिठक कर रुका। मुझे नहर के किनारे लगी एक और कश्ती नजर आई। पहले तो मैं यही समझा कि ये वही कश्ती होगी जिसमें सवार होकर मैं यहाँ तक पहुंचा था, मगर जरा करीब पहुंचने पर मुझे इसकी शेप पहली वाली कश्ती से मुख्तलिफ ही नजर आई। इसका साइज भी छोटा था, अलबत्ता इसका इंजन खामोश था और माहौल पर भी अजीब सा सन्नाटा तारी था। दिन ढल रहा था। मैं संभल संभल कर आगे बढ़ने लगा। जिधर घनी झाड़ियां थीं उसी तरफ मैं दुबका चलता हुआ बिल आखिर कश्ती के जरा करीब पहुंचा तो एक मंजर देखकर वहीं ठहर गया।
नहर किनारे लंगर अंदाज कश्ती से चंद कदम किनारे पर 3-4 लोग नजर आए। 2 अफराद कश्ती की चिमनी से लगे किसी काम में मशगूल थे। शायद कश्ती में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। वो इसकी दुरुस्तगी में लगे हुए थे। किनारे पर मौजूद घास और कदरे रेतीली जमीन पर कुछ बिछाए वो लोग बैठे बातें कर रहे थे। मैं भवें सुकेट कर गौर से इन्हें देखने लगा। इनके करीब मुझे बैक वक्त 2 किस्म के आतशी और दस्ती आयनी हथियार भी रखे नजर आए। यहाँ ये 4 अफराद थे। इनमें से एक सरोकत जवान औरत थी। इसके जिस्म पर कबायलियों वाला लिबास था। मरमरी बाहें नंगी थीं। सदरी नुमा सा शलोका टाइप कुर्ता जिसकी कोहनियों से ऊपर तक खुली आस्तीनें थीं। इसकी उम्र भी मुश्किल 23-24 के पेटे में लगती थी। ये खाल का बना हुआ बहुत ही सलीके का लिबास इस कबायली और जंगली हसीना के मुतनासिब खदुखाल पर बहुत भला मालूम होता था। हल्के ब्राउन बाल खुले थे। दूसरा उसका कबायली साथी लंबा और दुबला सा इसके करीब बैठा था। बाकी 2 मुझे कबायली मालूम नहीं हुए। इनमें से एक ठिंगना मगर घुटी हुई मजबूत जिसामत का आदमी था। रंगत उसकी भी सांवली थी। दूसरा खासा लहीम शहीम और मजबूत जिस्म का आदमी था। इन दोनों अफराद के जिस्मों पर टाइट पैंट शर्ट थी। ये चारों मुझे जंगजू महसूस हुए, जैसे जरा बिदकने पर लड़ाई भिड़ाई के लिए तैयार होंगे। ताहम ये दोनों कबायली तो नहीं लगते थे, मगर इनके करीबी साथी जरूर महसूस हुए। मुझे इन पर यकीन की हद तक शुबा होने लगा कि ये वही लोग तो नहीं थे जिन्होंने ड्राइवर फतेह खान समेत उस बरतानवी मर्द और जर्मन औरत का खून किया था, जिनके बारे में मेरा क्यास यही था कि ये लोग काली लहर वालों के आदमी हो सकते थे। बाकी 2 अफराद नंग धड़ंग खुलासी ही नजर आए जो चिमनी में मुरम्मत के काम में मसरूफ थे। मैं होंठ नीचे थोड़ी देर वहीं दुबका रहा। मेरा ज़हन इस वक्त तेजी से काम कर रहा था। अगर ये वही लोग थे तो इनकी कश्ती में बोम्बोरगा का मुजस्मा होना चाहिए था। तभी पूरी तरह मेरे क़यासात की तस्दीक होती। मैं थोड़ा और करीब बढ़ा। आसार बताते थे कि इन लोगों का ज्यादा देर यहाँ रुकने का इरादा नहीं था, क्योंकि लहीम शहीम आदमी को मैंने बाआवाज बुलंद खुलासियों को आवाज देते और कुछ पूछते सुना था। कुछ मिली जुली उर्दू और हिंदी के अल्फाज थे जिनका लुबे-लुबा मुझे यही समझ आ सका था कि और कितना काम बाकी रह गया है। खुलासियों ने शायद इसे बावर करवा दिया था कि काम ज्यादा तूल पकड़ सकता है। यही सबब था कि उसका ठिंगना साथी और कबायली औरत का आदमी दोनों ने उस लहीम शहीम आदमी से कुछ कहा और वो दोनों वहां से उठकर कश्ती की तरफ चले गए। मैं हनूज इनकी एक एक हरकत और सकनात पर नजर रखे हुए था। थोड़ी देर बाद जब वो दोनों लौटे तो इनके हाथों में कुछ सामान था। ये कुछ खाने पीने की अशिया और चाय कॉफी बनाने का सामान था। फिर वहां खुश्क झाड़ियां इकट्ठी करके आग रोशन कर दी गई और वो इस पर मछली भूनने लगे। एक बड़ी शराब की बोतल भी थी, 3 गिलास भी थे। कॉफी का बर्तन भी अलाव पर रख दिया गया। इनकी बातें सुनने के लिए मैं थोड़ा सा और सिरका। कबायली औरत इसी तरह मिली जुली हिंदी में लहीम शहीम आदमी से कह रही थी, रांगा साहब बहुत तेज दिमाग के आदमी हैं। ताखीर की सूरत में फौरन और साथ ही रवाना करने में देर नहीं लगाते। मुझे तो लगता है कि अब हमारी ताखीर पर कहीं वो खुद ही इस तरफ को रवाना न हो जाएं। लहीम शहीम आदमी ने अपने सर कोहले से असबाती जुम्बिश देते हुए जवाब में कहा, रांगा साहब नहीं मैडम कहो, इनके पीछे मैडम लच्छी का दिमाग चलता है। रांगा बेचारे तो अपनी एक टांग कटवाने के बाद कहीं के नहीं रहे। मैं इनके मुंह से रांगा लंगड़े और मैडम लच्छी का नाम सुनकर बेख्तियार एक गहरी सांस लेकर रह गया। अब परवेज की जुबानी मालूमात के मुताबिक ये लोग मुझे सरोपा कबीले के लोग ही मालूम हुए, जिनके सरदारी मैडम लच्छी या रांगा लंगड़े के सपुर्द थी। बाकी इनके मुआवन यहाँ ख्याल साथी थे। राजन और शम्मू कह रहे हैं कि खराबी तवील हो सकती है, लगता है हमें रात इधर ही नहर वाले जंगल में गुजारनी पड़ जाएगी। औरत बोली। इसके लहजे में तशवीश थी। राजन और शम्मू शायद वही 2 खुलासी थे जो चिमनी की मुरम्मत के काम में मसरूफ थे। नहीं शीना, इन खतरनाक हालात में हमारा अब कहीं भी ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं, लहीम शहीम आदमी ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। फिर वो अपने करीब मौजूद ठिंगने साथी से जो उनकी बातें सुनने में महव था मुखातिब हुआ, रामू तुम कश्ती पर जाओ और इन दोनों से कहो कि अपना काम जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें, हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते। रामू नामी वो ठिंगना आदमी उठा और कश्ती की जानिब चला गया। रामू के उठकर जाने के बाद शीना नामी जंगली हसीना दोबारा उस लहीम शहीम आदमी से मुखातिब हुई, लेकिन गुरदास अब हमें भला किस बात का खतरा है? सहराई उकाब और उसके सरबराह अल्बर्ट से, जो बजाते खुद अपने चंदजीरक और घाघ एजेंटों समेत मुंबई या रतलाम नगर में डेरा डाल चुका है। गुरुदास नामी लहीम शहीम शख्स बोला। मुझे उसके लहजे में एक संजीदा से खौफ की झलक महसूस हुई, जबकि शीना नामी वो कबायली हसीना जरा भी खाइफ नहीं थी। वो उसी लहजे में बोली, गुरुदास मत भूलो कि हम न सिर्फ इनके 2 खास एजेंटों बोथम और जोली को हलाक कर चुके हैं, बल्कि इनके कब्जे से मुकद्दस बोम्बोरगा का मुजस्मा भी हासिल कर चुके हैं। हाँ, लेकिन शायद तुम फिर भूल रही हो कि ये इत्तिफाकी टकराव था। असल में तो मैडम साहिबा ने हमें राजा तैमूर के लिए रवाना किया था। गुरुदास ने फिर याद दिलाने के अंदाज में कहा, चलो यही सही। शीना ने सर झटका
मगर गुरुदास की बात अभी पूरी नहीं हुई थी। वो आगे बोला, और इसी खदशे के सबब ही मैडम ने हमें फौरन यहाँ भेजा था कि इनके पाकिस्तानी साथी राजा तैमूर की इस सिलसिले में मदद की जाए अगर वो किसी मुश्किल में हो। यूं तुमने देख लिया मैडम साहिबा का दिमाग किस कदर तेज था। वो इस खतरे को पहले ही भांप चुकी थी।